Hello universe, welcome to Nigla Group present the Thaishan Talk Show Season 9, co-powered by the Natural Married Couple Show under the aegis of the Nia Thani Foundation Society and fashion partner JA Studio, which is a collection designed by Jumtarangu. Ladies and gentlemen, tonight we are having a very special guest with us. He is not just a dancer, he is a movement on the stage. He brings fire on the stage actually. So without a further ado, let me invite my guest for today's episode. He is none other than our own supremely talented Logo Naluji. So how are you feeling, Logo, to come over here in the Thaishan Talk Show? I'm feeling really excited and moreover very happy to be here. Thank you so much. Okay, we are also honored to host you Yes. as a guest at the Thaishan Talk Show. So, Logo, we all know that you are an actor, a model, and a dancer, and currently the winner of the Arunachal Super Dancer Season 6, right? So, since Arunachal Super Dancer is a very like a big platform in Arunachal, so you've been the winner and these things, how do you feel? I feel really happy क्योंकि इसको ये प्लेटफॉर्म में आने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म में बहुत पहले से आ चुका था लाइक इन सीजन 4 आई पार्टिसिपेट एज ग्रुप डांस क्रू कॉल दी वर्सेटाइल टीम से हम रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे भी हम लोग फाइनल पहुँचा था एंड देन वी लॉस्ट हियर वहाँ पे भी हारा है एंड देन सेकंड इन सीजन 5 आई पार्टिसिपेट एज सोलो Like here in the same same consecutively okay. yes I participated as solo and then वहाँ पे भी final पहुँच कर फिर से आ रहा था Okay. and then this time in 2026 season 6 I participate again so yeah I मतलब जैसे तैसे करके हम इस बार विनर लिए तो I feel really happy. You really so मतलब अब दो बार हार चुका है ना and you Yes. but you never give up. Yes, I You never. keep working on it and you made it and it's very inspiring to know. So before becoming a star, now you are already a star of the state. You have also participated in India's Got Talent, if I'm not mistaken. Yes. You were there in the quarterfinal or something, no? And you have won the one of the most what do we call prominent dancing reality show of our state, no? That is Arunachal Super Dancer. You have won the title. Before becoming a celebrity, before becoming a superstar, who was Logo Nalarji? Like, can you please give a brief introduction about yourself to the audience? Before winner, I was a boy from a village called Lada, which is under Bichum district. So in Bichum district, there's a village. Lada is a circle, so there is one village called Kyongkabom, and that Kyongkabom is our village, the Naroiju clan village. No? Okay. So I was from I'm from there, and I came out from there, and I was studying in Balukpung. Balukpung. Yes, I have studied Balukpung from class 5 to class 12. Then I moved to here in Capital Complex, Itanagar, and then I started my secondary level. Dance में कभी आएगा सोचा नहीं था. I never thought that I could become a dancer. So yeah, कुछ ऐसा दोस्त मिला है dancers, and I got inspired by them, and I started dancing for fun. No, I never took it as serious to like as a career बनाएगा dancing से. ऐसे कभी सोचा नहीं था. But I जैसे जैसे डांस करते गया तो हमको like एक अच्छा फील करते गया. अब अंदर से Yes. स्पर्क फील हुआ है कि अरे हम भी तो कर सकते हैं, Yeah, हम yeah. अच्छा कर रहे हैं तो Yes. kind of like And I got appreciation from other also. Then I got motivated. So those who say motivate, "Wow, तुम अच्छा करते हैं," like something like that. They always encourage me. So ऐसा करके dance का scene में आया. And then before that I used to play football. More of the dance I used to play football. So okay, you were a footballer before. yes, no? before I have played football many times, and I have represented. I have played state level football also, and I won there also. वहाँ पे जीता भी था, state level खेलता था. तो football में बहुत ज़्यादा खेलता था. तो like ऐसे ही हो गया था कि football एक समय में एक addiction type का हो गया था. Kind of addiction. Yes, like kind of addiction. So मतलब ground में हमको जिससे भी हर समय हमको जाना है ऐसा. Then तो डांस में भी फिर हम धीरे धीरे कॉलेज हो गया and then school friend लोग सब पर डांस करता था. And like ऐसे अच्छा फील होता था. तो ऐसे से होके एक अप्रिसिएशन मिलते गया. अप्रिसिएशन मिलने का तौर पे फिर एक खुद को प्रूव करने का चक्कर में डांस करते गया. एंड आई हैव मतलब हम कभी डांस क्लास तो गया नहीं है. एक महीना गया था डांस क्लास.
तो वहाँ पे गए तो इतना नहीं सक रहा था तो बाकी का डांसर कंपेयर में, तो आई लाइक फील शाई एंड आई नेवर गो टू डांस क्लास। तो ऐसे ओके हम कभी गया नहीं है, बस इतना ही था डांस का। डांस पहले नहीं करने पहले खुद को कभी सोचा नहीं था डांसर बनने का, बट देन आई कीप ऑन डांसिंग, आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सो या आज का डेट में ऐसा। So you said that you are a good football player, no? तो आपका favorite, if I would give it 3 name, okay, you have to choose Yes. among the Okay. who would you choose, like Neymar, Messi or Ronaldo? And if you're choosing that, why? ओके लाइक ऐसे मतलब मेरा बचपन से ऐसा था कि हम मेरा नाम को एक समय ऐसे भी रखा था कि एनसीआर। NCR. यस एनसीआर। आई गॉट लाइक इंस्पायर्ड बाय रोनाल्डो। Ronaldo. यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि ऐसा है कि वो मेरा फेवरेट फुटबॉलर एज वेल एज नॉट फेवरेट, मतलब हमको किसी भी मतलब ऐसे कभी नहीं होते कि किसी से हम बहुत लाइक वो लोग बहुत अच्छा लगता है ऐसे नहीं। देयर इज ओनली वन पर्सन दैट आई ऑलवेज गेट इंस्पायर और ऑलवेज द फील गुड टू वॉच, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। CR7. Yes, CR7. Okay. Yes. So what made you inspired like from him? What is that one characteristic of Cristiano Ronaldo that वो जो आपको inspire करते हैं? Because अगर देखा जाने से तो Messi also he has won lot of like Ballon d'Ors ना, और वो FIFA भी जीता है, and Neymar he is also like doing quite good ना, Yes. football career में बहुत अच्छा कर रहा है, and like no doubt कि रोनाल्डो ही has got a lot of fan in this thing, no? तो लोग बोलते हैं कि रोनाल्डो का तो बस पीआर से ही बढ़ रहा है ना, he has got a fans, तो वो इतना अच्छा नहीं खेलने से भी बस उसको ऐसे ही मतलब हाइप मिल जाता है। Yes. तो आपका क्या कहना है इसका ऊपर? What's your take on it? Yes, for me, like why I like Ronaldo is why I like Ronaldo is that because वो बहुत मेहनती है, as we can see that the struggle he made during his childhood। वो एक उसको खाने नहीं मिलता था, स्ट्रीट में वो क्लीनिंग करता था। उसका पापा जो लाइक ऐसे मतलब हम स्टडी किया है, लाइक उसका पापा जो ऐसे बहुत ड्रिंक करता था, तो इतना केयर ऐसे से कुछ सुनने मिला है। बट व्हेन आई रीड अबाउट हिज स्टोरी दैट एक इंसान जो कि मेहनत करके कौन सा लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो एक हमको सीखने को मिला है उससे ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉट ओनली फुटबॉल बट एक इंसान एक स्ट्रीट से लेकर उसका वो जर्नी जो बहुत कितना टफ ग्लोबल स्टेज तक कितना कैसा आया है ना। yeah. तो वैसे आप बोले कि लाइक हिज फैमिली इसका बारे, आप अपना आइडल का फैमिली का बारे तो आप बता दिया। चलिए अभी जानते हैं आपका फैमिली कैसा है और आपका फैमिली में कौन कौन है, जरा बता दीजिए। मेरा फैमिली, मेरा पापा है, पापा, यस, मम्मी। आई गॉट 2 मॉम्स, मेरा फर्स्ट मम्मी, सेकंड मम्मी। तो मेरे पापा का 2 वाइफ है, तो दोनों को मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं। और एंड फर्स्ट मम्मी का मेरा फर्स्ट मम्मी का 3 बेटी। और 3 बेटा है। एंड देन मेरा सेकंड मम्मी का 3 बेटा 1 बेटी। यस, वी आर 12। यस 12 siblings you have yes, got. 12 siblings। So like what's your take on polygamy, because your family itself Yes. is going to polygamy, no? तो आपको उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहा या पॉजिटिवली कुछ इफेक्ट भी हुआ? बिकॉज एवरीथिंग गोट इट्स प्रोस एंड कॉन्स, Yes, नो? yes. तो आपको कुछ इम्पैक्ट हुआ है आपका लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस polygamy and these things? If you are comfortable then Yes, ऐसा तो कुछ हमको फील नहीं, लाइक माय It's मॉम्स very normal, यस no? बोथ माय मॉम आर हैप्पी विद ईच अदर। Okay. और मेरा पापा भी हैप्पी है। तो लाइक इफ़ यू मैरिड 2 or 3, आई डोंट थिंक मतलब आप अगर हैप्पी है, खुश है, तो अगर खुश है तो नो प्रॉब्लम आई। in life Yes. all what is matter is Yes, happiness, happy, ना? yes. तो अगर When खुश you- रहेगा तो आप जो कुछ भी करें, Yes, if you're yes. happy and Yes. if your family is happy then that's enough. Yes, जिंदगी में बस but खुशी तो चाहिए। I don't encourage polygamy। Okay, so yeah, yes. you don't encourage. Yes,
दैट्स गुड थिंग। और हमको ये भी जानना था हाँ आपसे कि जब हमको पता चला कि व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम होस्टिंग यू एज Yes. तो हमको ये बहुत जानने मन था कि लाइक हाउ डिड यू लाइक रियलाइज कि आपको डांस वुड बिकम एन आइडेंटिटी ऑफ लोगों के लिए डांस जो एक आइडेंटिटी बन जाएगा बिकॉज पीपल नाउ नो यू एज ए लाइक सुपर डांसर ना यू Yes. यू वर फीचर्ड इवन इन इंडियाज गॉट टैलेंट एंड Yes. रिसेंटली यू वॉन दिस थिंग्स नो तो आपको कब रियलाइज हुआ कि दिस थिंग्स डांस इज समथिंग विच विल मेक मी अ पर्सन इन लाइफ? यस वेल मतलब मेरा ऐसा था कि डांसिंग में बोलने से हम बहुत बिगिनर ही है एक्चुअली। मेरा डांसर्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है हमसे जो सीनियर है, और वो लोग सेम प्लेटफॉर्म में हम लोग कम्पीट किया है। तो वो लोग जो अचीव नहीं कर पाए तो हम शायद हम लकी हमको खुद को फील ऐसा फील करता है। यू फील फॉर्चुनेट? यस फॉर्चुनेट, आई फील वेरी फॉर्चुनेट। और वो लोग जो ये प्लेटफॉर्म में बहुत बार कोई पार्टिसिपेट किया है बट ये चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, बट हम भी बहुत सेक्रीफाइस किए ये चीज़ को पाने में। बट ऐसे है कि हम कब से हम डीपली डांस को घुसने लगे बोलने से, जब हम ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ जब डांस करते हैं तो आपको एक इम्पोर्टेंस मिलते हैं। तो जब हम डॉन बॉस्को कॉलेज में था, जब ये जोलांग वाला जो डॉन बॉस्को, जब व्हेन आई वाज देयर दैट वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट होता था। कल्चरल इवेंट में ऐसे होता है कि जब जो ऐसे होते हैं जो डांसर्स होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं कल्चर को, वो लोग अलग सा वो लोग को एक वो मिलते हैं, मतलब स्पॉटलाइट में भी। यस स्पॉटलाइट एंड देन दे मतलब टीचर लोग जो बहुत उस लोग को ध्यान देते हैं। ओके मतलब इवन इन स्कूल लाइफ हमको भी एक्सपीरियंस किया, दोस्त वर गुड इन डांसिंग ना, थोड़ा बहुत होते हैं ना उनका। हाँ यस, वो लोग का ऑरा अलग होते हैं। तो यस, तो हमको लगा कि यस मतलब हमको फर्स्ट ऐसे नहीं था कि हम जो डांसर्स बन के मेरा करियर बनाएगा, ऐसे तो नहीं था। बट हम ऐसे एक स्पॉटलाइट के लिए खुद को हम ऐसे थोड़ा फ्रेंड चाहिए, स्कूल में थोड़ा कूल बनने बनता था। हाँ, उसके लिए हम शुरू किया था। तो ऐसे से करके हमको धीरे धीरे हमको रियलाइज़ होते गए कि आपको इम्पोर्टेंस मिलने लगा ना, जैसे आप डांसर से। तो फिर हमको ऐसे कुछ कोरियोग्राफी ना दूसरा लोग इधर जैसे फाउंडेशन डे हो गया, कुछ ये इवेंट्स में कुछ कोरियोग्राफी हो गया, ये सब में मतलब करने गए तो लाइक ऐसे हमको ऐसे फील हुआ है कि यस यू कैन ऑल्सो लाइक अर्न समथिंग फ्रॉम थ्रू डांसिंग, राइट? थ्रू डांसिंग, यस थ्रू डांसिंग यू कैन सस्टेन। हमको ऐसा फील हुआ है। तो अगर मेरे पास वो टैलेंट है तो क्यों ना हम इसको लेके आगे बढ़े ना। तो लाइक आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द लाइक ना जितना भी व्यूवर्स है, उससे हम ये अपील करें कि अगर आपका अंदर में जो टैलेंट है, आपको वो चीज़ में करने में खुशी लग रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा केस में वैसे है कि हमको डांस करने में आफ्टर लिविंग फुटबॉल को छोड़ने का एक रीज़न भी था। मेरा एक्चुअली में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था ना। ट्यूबरक्लोसिस होने का कारण से मेरा जो दौड़ते जो हमको डॉक्टर जो मना किया था 9 मंथ्स तक, तो 9 मंथ्स तक हम रेस किए हो तो डांस भी मत करो, कुछ भी हार्ड वर्किंग मत करो बोलता। तो उसमें ऐसे हुआ कि हम जब 9 मंथ्स का बाद आफ्टर ग्राउंड वापस गए तो हमको सब लोग ऐसे चिराने लगा कि अच्छा नहीं खेलते ऐसे रहा। तो मेरा वो एक बैलेंस जो ख़त्म हो गया था फुटबॉल का ना, तो ऐसे से हम फुटबॉल को छोड़ दिया, साइड रख दिया। अभी डांस को फिर हम लेके गए। डांस को लेके जाने के बाद तो धीरे धीरे करते गए थोड़ा फेम मिलते गए और कुछ रिजल्ट भी दिखाई देते गए ना, इंपॉर्टेंस मिलते गए डांस का थ्रू से। एक हम लोग अपना सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस मिला है, फैमिली मेम्बर में एक इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में बोलने से आई एम द फर्स्ट डांसर। You are the first dancer from Bichum district. Yes, Bichum district. तो ऐसा कोई निकाला नहीं, तो आई थॉट कि यस दिस इज द राइट टाइम ना। तो जब आप जीत के आया था ना, जो अरुणाचल सुपर डांसर जब आप जीते, तो आपका डिस्ट्रिक्ट ना, आपका लोग का रिएक्शन कैसा था? हाउ वाज देयर रिएक्शन? बहुत सारा वेल विशर्स लोग विश किया है और बहुत सारा लोग मतलब सपोर्ट भी करना है ना। स्पेशली मेरा दीदी लोग जो मेरा सिस्टर्स लोग नालोजू सिस्टर्स लोग है, पूरा वहाँ में जो सेपा में जब हुआ था तो उसमें पूरा वो क्राउडेड हो गया था। सबसे आई थिंक मेरा ऑडियंस सबसे ज़्यादा था वहाँ पे। यस, तो आपको लगता है कि ऑडियंस ज़्यादा होने का वजह से भी थोड़ा बहुत? नो आई डोंट थिंक सो। ऑडियंस क्योंकि उसमें थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट तो देता है पर ऑडियंस का, बट लाइक the thing is that your skills and your presentation during the grand finale, the grand itself says that grand होना है ना। तो I think there is no doubt that मेरा परफॉर्मेंस था सब बाकी पांचों कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा grand था आई थिंक। Okay, that's why you made it ना, इसलिए आप जीता है। तो जैसे कि आपने बोला है कि you have started dancing, आप डांस इसलिए शुरू किया था कि आपको फेम मिलो ना, आपको लाइक थोड़ा ओरा अनटचेबल ओरा में पहुंचा। तो इसका वजह से लाइक डिड यू गॉट एनी काइंड ऑफ लाइक प्रपोजल और समथिंग कि डांस के आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया जो आपका मेन मोटिव था एक्चुअली?
यस ऐसे तो बहुत लाइक कॉलेज में होता था, ऐसा बहुत बहुत कुछ होता था, बट ऐसे लड़का आपस में, लड़का लड़की प्रपोजल ये सब तो बहुत चलता था। बट ऐसे था कि मतलब हम थोड़ा एटीट्यूड में रहता था कॉलेज में, है ना। ओके, तो मतलब मतलब बोलने से भी हम नहीं जानते, ऐसा था थोड़ा, मेरा एक कैरेक्टर ऐसा था। तो हम इतना कुछ वो रिस्पॉन्स नहीं दिए, अदरवाइज वो लोग। यू आर वेरी फोकस टुवर्ड्स योर करियर, और यस जो यस मतलब गोल था ना उसमें बहुत फोकस रहे। यस यस, तो उसका कारण से हम इतना वो सब में तो ध्यान नहीं दिए, और ऐसा लड़की ये सब ना, तो यस इतना। ओके, तो हाउ वाज योर टेक ऑफ योर फैमिली जब आप बोला कि अब डांस करना है ना, तो आपका फैमिली कैसा था? सपोर्टिव था या लाइक दे सेड कि नहीं अभी पढ़ाई में कंटिन्यू करो, समथिंग लाइक दैट? और अब पढ़ाई में कैसा था वो बहुत जानने वाले हैं हमको, यस क्योंकि ओके। हम बहुत देखा है लाइक दोस हु एंड अप इन लाइक प्लेइंग गेम्स, और जो डांस या किसी भी दूसरा चीज़ में चला जाता है ना, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी लाइक आर पीपल हु जो इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं ना, तभी फैमिली वाला भी करते हैं कि ओके यू डू गो इन दिस पार्ट, नो ये सेक्शन में चला जाओ ना। तो आपका कैसा था? स्टडी बोले तो लाइक आई वाज मतलब थोड़ा एवरेज ही था, लाइक Average आई ना? एम नॉट टू गुड इन स्टडी तो, ना और अच्छा सब नहीं, इतना इतना खराब बैड भी नहीं। नहीं था, बट आई फ्रॉम क्लास 5 to class 8 I was really good. At that time I was very competitive, and I always like want to secure the first position, First no? position. And that time I have done it also. In class 8 also I was the first rank in class 8. Okay. एंड धीरे धीरे वहाँ से ऐसे बड़ा होते गया, तो मेरा पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा वो रिश्ता जो था ख़त्म होते गया। लाइक ऐसे हो गया कि मतलब आप जब ग्रोड हो जाते तो स्टडी से थोड़ा थोड़ा गैपिंग होने का कारण से तो स्टडी, बट स्टिल देन मतलब हम जो पढ़ा है ये चीज़ को हम मेंटेन किया है। बट डांस को हम इतना मतलब पढ़ाई से तो कभी आगे नहीं रखा है, और वो चीज़ कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ाई जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है एक इंसान का लाइफ में ना। आजकल का जनरेशन देखा जाए तो यू मस्ट बी इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल जो ओनली पढ़ाई से ही आप हो सकते हैं। तो पढ़ाई को हम ले गया, कंटिन्यू ले गया अप टू हम ग्रेजुएशन। मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2 years हो गया है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2024। तो इन इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया है डॉन बॉस्को कॉलेज तो में। आपका डांस को लेकर आपका फैमिली का टेक क्या था, उनका ओपिनियन कैसा था कि वो आप लोग का ऐसा डांस था में कंटिन्यू कि करें? यस, स्पेशली माय फादर ही ऑलवेज वांट मी टू बी लाइक कुछ गवर्नमेंट जॉब करो ऐसा सारा। यस, तो ऐसा मतलब जॉब करो। देन व्हेन आई लुक बैक द सिनेरियो, नो, आई मतलब ऐसा देखने से भले ही आप नौकरी करो या जो भी कुछ भी करो, यू वर्क फॉर द लाइक मनी, तो आपको अगर कुछ चीज़ से पैसा मिल रहा है तो लाइक you don't need to like be a like you know government servant or something like that. So आप अगर किसी चीज़ कुछ अलग चीज़ से भी इनकम कर रहे तो नौकरी से ही करना बोल के नहीं है। You can earn from anything if you have a talent. Yes. So I told my father that ऐसा है, हम ऐसे करना है। तो वो लोग थोड़ा बैकवर्ड है, पापा लोग ऐसा चीज़ में इतना नहीं जानते। तो वो लोग इतना नहीं जाने, बट दे हैव लाइक दे गो अगेंस्ट मी, मतलब ऐसे बोल रहा था कि डांस से कुछ नहीं होगा, ऐसा से बहुत हमको बोला है रुकावट, आगे फर्दर पढ़ाई करो, नौकरी करना है, कोचिंग करो, ऐसे से वगैरह बहुत बोला है। तो हम पापा को झूठ बोल के रखा था कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हाँ कोचिंग कर रहे हैं बोल के, बट आई लिटरली ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो वो समय में जब कॉलेज खत्म हुआ है तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं हो गया था। तो ऐसे हो गया, पापा भी हमको वहाँ से प्रेशर दे रहा था फैमिली तरफ से भी कि फर्दर पढ़ना है, आपको कोचिंग करना है, नौकरी करना है। तो ऐसे होने का कारण से हम सोचा है क्या करें। तो मेरा दीदी अभी मेरा दीदी का सर रहता है, देवी भाई बोल के उसका सर रहता है। तो वो छोटा से हमको देखा है, तो उसका सर रहता है। तो उसका थिक बिल्डिंग हुआ है अपार्टमेंट में, नीचे में एक खाली रूम था। तो उसको हम देखा है इसको हम क्या बना सकते हैं, सोचा है। तो हम एक आइडिया है कि हम डांस क्लासेस खोलेगा बोल के। यस, हम डांस क्लासेस खोलने का साथ साथ मेरा बहुत सारा डांस फ्रेंड्स लोग जो है आया है, सपोर्ट किया है। उसका और वहाँ से हम थोड़ा अर्निंग शुरू हुआ है मेरा डांस क्लासेस से। वो डांस क्लासेस अर्निंग शुरू होने का, तो हम पापा से पैसा नहीं मांग रहे, पैसा भी नहीं मांग रहे। वो भी पूरा शौक हो गया हुआ कि मतलब क्यों वाई आई लाइक मतलब क्यों पैसा नहीं मांग रहे ऐसा। तो ऐसे से हो कि मेरा खुद का सेल्फ इनकम हो रहा था वहाँ में। तो हम किसी से हम लाइक किसी को डिपेंडेंट नहीं हुआ था एक हम। तो ऐसे होने का कारण से तो वो लोग भी हमको इतना क्वेश्चन नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम देम, तो हमको इतना क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो वो भी हमको ऐसे ही छोड़ दिया था। वो वहाँ से क्वेश्चन ले रहा था, तो हम भी जी रहा था अपना लाइफ, वहाँ में डांस क्लासेस रनिंग कर रहा था। एंड देन वो सब हमको जो मिलना था मिल रहा था।
तो ऐसे से हो कि हम डांस का सीन में ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते क्या, डांस क्लासेस खोलते क्या, इनकम करते क्या। तो धीरे धीरे ये चीज़ पूरा पापा लोग को भी रियलाइज़ हुआ हुआ कि यस माय सन इज अर्निंग। तो जो भी चीज़ से अर्न कर रहे हैं, नौकरी करो या तो कुछ भी, यस if you are earning then it's enough, I think so. At the end, तो money is what it matters. yes, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लिया चीज़ को मेरा। At first they were yes. not that much supportive Yes, because of कि हम लोग को इतना पता नहीं है कि Yes. थ्रू डांस भी हम लोग ऐसा कुछ कर Yes, सकते हैं ना, we हाँ, can हाँ. make our life. yes, yes. तो उसके बाद होते 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 when they see Yeah. that कि आप कर रहे लाइफ में एक्चुअली कुछ कर रहे हैं ना, एंड Yes. अपना पेट के लिए ना, तो सस्टेन इन लाइफ Yes. आप कुछ तो कर रहे हैं, एंड दे एक्सेप्टेड इट नाउ। Yes, और yes. वो लोग आर दे हैप्पी नाउ? Yes, they are very happy, especially my father came during my grand finale. Okay. तो कुछ आया है, जीता है, इतना खुशी। मेरा फैमिली तो कोई भैया लोग पहले इतना सपोर्ट नहीं करता था, तो वो लोग भी बहुत भाभी लोग ऊपर रो रहा था हम जीते, तो एक इमोशन दिखाई दे रहा था कि हम इतना 3 साल से कर रहे हैं ये चीज़ को पाने के लिए। तो हम भी रो गया था वहाँ पे ऑन द स्पॉट। तो ऐसे से हो कि अभी तो हमको सपोर्ट करता है, स्पेशली मेरा एक भैया है निप्यांग दानियल मिची। तो वो तो मेरे लिए हमको ऐसे बोलते हैं कि तुम डांस को कंटिन्यू करते रहो, हमेशा सपोर्ट करें। मेरा थर्ड भैया है वो जो, तो बहुत वो सपोर्टिव है अभी तो मेरे लिए। बहुत लकी है ऐसा Yes. सपोर्टिव फैमिली मिलना भी ना। सो इट्स सो ओवरवेलमिंग टू लिसन टू योर वर्ड्स ना, आपका बारे सुन के इतना अच्छा लग रहा है, एंड वील गेट टू नो मोर, बट बिफोर दैट let's have a short Nigla coffee break, and we'll be back soon after a short break. Good, बहुत काम है। ओके सो वेलकम टू कमदीर टोयोटा। तो आज हम लोग के साथ में जो कार है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट एसयूवी कार है, जो कि इंडिया का टॉप सेलिंग कार में से एक है, जिसका नाम है टोयोटा हाईराइडर। वैसे तो ये हाईराइडर में बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन इसका जो टॉप फीचर्स है उसका बारे में आप लोग को हम बताएंगे। टोयोटा हाईराइडर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिलता है। इसका पेनोरामिक जो सनरूफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कार में आपको स्मार्ट आई कनेक्ट देखने को मिलते हैं, तो हाँ, आई कनेक्ट बहुत ही लाइफ इजी कराता है। और एक चीज, इसका माइलेज है आपको 25 से लेके 27 तक का आपको रेंज देखने को मिलता है। इसका जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है, सो बहुत ही इजी होने वाला है आपका राइडिंग वगैरह। आप लोग को पता है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश का रोड कंडीशन कैसे है बोल के, तो उसमें ये कार क्यों काम आएगा बोलने से, इसका जो मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm का है। और उसी का साथ साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ऑल व्हील का ऑप्शन है, जिसका मतलब आपका 2 चक्का नहीं 4 चक्का घूमेगा। तो हाँ, अगर आप लोग में से किसी को भी ये कार के बारे में और भी जानना है बोलने से, आप लोग शोरूम विजिट कर सकते हैं, लेखी में ही है। और शोरूम में आने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते ये लोग बहुत ज्यादा कॉफी पिलाता है, हम लोग 3 कप पी चुका है। और हाँ, आप लोग को और भी डिटेल्स चाहिए कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो स्क्रीन पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इसका बारे में और भी पूछताछ कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टोयोटा हाईराइडर को। और हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया कार जल्दी ले लेगा और यहीं से लेगा, कम भी कर देगा ना दाम। हाँ, ठीक। So welcome back to another part of the Nigla Group present the Taishan Talk Show Season 9. This is the second half of the episode. So now we will start it with some fun games. So guys, you might be excited, and what about you? Are you excited for that? Yes, I'm excited and nervous too. What kind of question you are, what kind of like games you are giving me? Okay, let us have a small short round of games. I'll ask you. The name of the game is Truth or Salt. Okay. Like, you have to say the truth, obviously, and if you don't want to say, then you can just take a sip of the coffee, Nigla coffee. Okay. Okay, chalo. So, ever been rejected in life? No. You have never been rejected. Yes. You're lucky enough. Always been accepted, no? Yeah. Hey, इतना charming ना. With looks है, talent है, सब कुछ है. Like, पढ़ाई में भी अच्छा था. What else? Ever fake confidence on stage?
यस ऐसा हुआ था लाइक कुछ कुछ डांस परफॉर्मेंस से पहले बहुत ऐसा होता है ये चीज़ ना कॉन्फिडेंस तो बचपन से था बट ये चीज़ तो ह्यूमन नेचर है कभी कभी होते हैं ये सब था Okay. Secret celebrity crush of yours? यस आई हम मेरे पास तो ऐसा कुछ तो सेलिब्रिटी नहीं है एस आई टोल्ड यू बिफोर दैट No देयर इज celebrity ओनली वन crush. पर्सन दैट इंस्पायर मी दैट इज क्रिस्टियानो Cristiano Ronaldo. Okay. तो DM you regretted sending? किसी को DM कर दिया फिर regret किया यार नहीं करने से दिखता. यस ऐसे हुआ कौन है, था वो but- तो नहीं पूछ देगा हाँ, but ऐसे okay. ऐसे तो बताइएगा भी पर ऐसे तो हुआ है कभी कभी Okay. Dance or acting? अगर आपको या modeling तीनों में से like I love if you- both like dancing. I love both dancing and acting. Yes. but you have to choose only one. Yes, obviously I will choose dancing. Because, Dancing. Yes, इसका थ्रू से ही हम यहाँ पहुँचे तो yeah. Fashion talk show तक भी Yeah. आप आया ना like. Yeah, Fame or respect? What would you prefer? I will choose fame. I will choose respect. Respect. Because without respect, fame is nothing. तो Okay. जहाँ भी जाओ आपको respect is must ना. Love or career? आपको बताते से तो हमको क्लियर हो गया आप क्या चूज करें Yes. बट स्टिल लव और करियर. I will choose career obviously Career, because I yeah. have lots of responsibility और हमको बहुत कुछ आगे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है तो I always choose career. Okay. One words for haters. Haters, right? Like if anyone like- trolls you or yes. जो आपको नापसंद करते something. हेटर्स को वो ये बोले कि लाइक अब लोग जितना हेट करेगा हम उतना आगे बढ़ रहा होते हैं तो अब लोग हेट करो या लव करो उससे हमको कोई मैटर नहीं है बट द थिंग्स इज दैट आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड सो इट्स बेटर कि अब लोग हमको प्यार करो प्यार थैंक यू करो सो मच Okay. One thing you would steal from another dancer. यस One thing, no, one quality that you would steal from another dancer. ओके क्या चीज आपका में नहीं और अब दूसरा में आप उसको लेना चाहते हैं. वो चीज़ ऐसे कि लाइक कोई कोई का होता है बहुत कॉन्फिडेंस राइट लाइक बॉडी मूवमेंट हो गया वो सब हो गया कोई कोई का बहुत मतलब बहुत अच्छा देखते हैं बॉडी मूवमेंट एंड द कैरेक्टर दे अपियर ड्यूरिंग डांसिंग वो सबको हमको लाइक लेने मन होते हैं बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ लाइफ अगर आप फ्लेक्स है तो आपका पास जो है वो क्या चीज होगा वो. फ्लेक्स तो ऐसे कुछ लाइक मेरे पास करने के लिए तो नहीं है लाइक आई लव टू बी डाउन टू अर्थ ना Down to हम earth. यस हम इतना फ्लेक्स में इतना वो नहीं प्रायोरिटी नहीं रखते तो हम जैसे है वैसे हमको दिखाने में हम Simplicity is the real Simplicity, beauty yes. ना. Okay. तो last question. One things fans don't know about you. आपके बारे में जो one thing जो लोगों को पता नहीं है Yes, yes. like. वो तो रहेगा कि स्ट्रगल ना Yours लाइक about अभी your हंसी खुशी यहाँ बैठ रहे हैं और वहाँ पे जीत गया ऐसे होने से भी लोग मतलब वही सक्सेस को देखते हैं ना स्ट्रगल को कभी नहीं देखते तो आई थिंक एक चीज़ जो नहीं जानते तो हमेशा एक सक्सेस का पीछे कितना स्ट्रगल वो इंसान जो किया होगा वो चीज़ को वो लोग नहीं जैसे आपने स्ट्रगल Yes. का बारे जिक्र किया है ना लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट आप क्या क्या स्ट्रगल रहा आपका लाइफ में एंड हाउ डिड यू कम अप फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. ओके स्ट्रगल बोलेगा तो डांस का जर्नी में बोलेगा तो बहुत कुछ किया है और एंड देन लाइफ में भी बहुत कुछ स्ट्रगल किया तो उसमें ऐसे था कि जब हम लोग का जब कंपटीशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है स्पेशली यू हैव टू मैनेज द बैकग्राउंड डांसर एंड यू हैव टू लाइक आपका पास फाइनेंशियली कहाँ से मैनेज करेगा ऐसे होता है एज अ स्टूडेंट ना और आजकल तो ऐसा भी हो गया कि लाइक इवन पीपल दे हैव द टैलेंट नो Yes. पर ऐसा हो जाता है कि इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड Yes, उनका yes. फैमिली अगर फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है तो वो लोग पुश करने के लिए कोई नहीं रहता है एंड देयर टैलेंट घर में ही रह जाता है ना Yes, yes. उसको एक अच्छे स्टेज नहीं मिल पाते हैं. Yes. तो आपका उसमें कैसा था आपका फैमिली सपोर्ट क्या था लाइक फाइनेंशियली एंड हाउ इज योर फैमिली बैकग्राउंड. फाइनेंशियली बोलेगा तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरा फैमिली स्पेशली मेरा दीदी था मैडम दीदी और मेरा बाकी जो एक दो भैया है वो बहुत सपोर्ट किया है हमको फाइनेंशियली में और हमको लगता है कि अगर कुछ चीज़ को आप वैसे डांसिंग में स्पेशली फाइनेंशियली तो बहुत इम्पोर्टेंट है Okay. आपको कॉस्ट्यूम अगर आप कोई कंपटीशन में है तो आपको कॉस्ट्यूम अच्छा पहनना होता है आपको खुद को अच्छा दिखाना होता है तो प्रेजेंटेशन में हो गया आपका प्रॉप्स हो गया तो वो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमको लगता है अगर आप फाइनेंशियली वीक होगा तो कहीं ना कहीं आपका पीछे रह जाएगा ना. टैलेंट होने से भी आप कहीं ना कहीं तरफ पीछे रह जाएगा तो फाइनेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आप अगर टैलेंट होने से भी आपका टैलेंट को और भी उभरने देने के तो ये ऐसा रियलिटी शोरूम में ऐसा ही होता है तो ये चीज़ को
मतलब ऐसे नहीं होने कि हाँ रियलिटी शो में ये तो पैसा पे के जीत गया, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बट कि ऐसे होता है कि कुछ कुछ चीज़ें बेयर Yes. मिनिमम इस नीडेड ना, Yes, कुछ needed. कुछ चीज़ें It's very होता है important, लाइक। yes. तो आपका जो सोसाइटी या ऐसा सच से कुछ आप सपोर्ट मिला है आपका? Yeah, बिकॉज इन हमको- अरुणाचल वी हैव दैट क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ होता है ना, सोसाइटीज लोग होते हैं, क्या आपका वहाँ में भी ऐसा टाइप का सोसाइटी से है? और यस मेरा है नालोजू वेलफेयर सोसाइटी, Okay. बट मेरा उसमें ऐसे कि सोसाइटी इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके ना कि वो लोग शायद आउट ऑफ नॉलेज, वो लोग का नॉलेज में ये सब इतना नहीं होते, तो उसका कारण से वो लोग को शायद इतना अवेयर नहीं होने का कारण से वो लोग इतना इंटेंस आपको सपोर्ट नहीं दे पाए, बट एक दो तो दिया है, बट डायरेक्ट सोसाइटी का तरफ से ऐसा सपोर्ट बोल के हमको अभी तक आया नहीं है, अभी तक बट आया आई होप इन फ्यूचर वो करेगा। Yes, आपको अगर हम लोग अभी ताइशन टॉक शो का थ्रू देखेगा फिर Yes. लाइक आई होप दैट दिस Yeah. सपोर्ट्स विल कम टू यू। Yes. तो ऐसा रहता है कि ना बहुत ज़्यादा पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि डांसिंग करके या मॉडलिंग करके एक्टिंग करके क्या ही कर लेगा ना, एक तरफ से बोलने से सही भी है, क्योंकि जब आप चमक रहा होता है ना, व्हेन इट्स योर टाइम ना, तब बस आपको लाइक टू यू कैन गेट सम अर्निंग, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, फिर वो पीक जो चला जाने से ना, आपका हाइप समय चला Yes, जाने yes. से फिर अब वही यू बिकेम लाइक दैट ना, तो उसको आपका ओपिनियन कैसा उसका ऊपर में है? मेरा तो यही रहेगा, यस ये केस में ऐसे रहेगा कि अगर आप जब अर्निंग कर रहे हैं तो आपको एसिड्स क्रिएट करना चाहिए ना, थ्रू योर अर्निंग यू मस्ट क्रिएट योर एसिड, मतलब एसिड्स क्रिएट करके तो आफ्टर मतलब आपका हाइप जब खत्म हो जाता है तो यू कैन अर्न फ्रॉम दैट एसिड यू क्रिएटेड ना। अगर आप ऐसे कुछ आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे तो ऑब्वियसली यू विल अर्न। सो मतलब ऐसे नहीं है कि डांस करते रहेगा ऐसे भी बोल के नहीं है। यू डांस आप अगर आप डांस भी करो और डांस का तौर पे आप साइड में भी कुछ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज एक चीज से बस नहीं होगा ना। यस डांस ओनली डांस करके आप लाइफ में सस्टेन नहीं कर सकते वो। ऑब्वियसली आई वोंट इनकरेज एनीवन ना कि सिर्फ डांस ही करते रहो, ऐसे नहीं। डांस का साथ साथ आपका टैलेंट का साथ साथ आपको डांस का थ्रू से आपको फेम मिलेगा। वो फेम को यूज़ करके आप आपका बिजनेस कुछ आइडिया में डालो, कुछ ऐसे लाइक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके रखो ड्यूरिंग योर रेनिंग ना। आप जब आप हाइप में होते हैं तो आपको लोग चाहते हैं ना, तब आप वही इनकम से आप कुछ करके इधर उधर करके रखिएगा तो यू विल सस्टेन। तो वहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। You're a dancer in these things, no? तो आपने अरुणाचल सुपर डांसर जैसा एक बहुत बड़ा स्टेज पे परफॉर्म किया है ना, तो आपको क्या लगता है अरुणाचल सुपर डांसर एक कैसा प्लेटफॉर्म है और वो क्या क्या ऑफर कर सकता है फॉर द यूथ, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन ऑफ द स्टेट? वेल अरुणाचल सुपर डांसर is one of the biggest dance reality show in our state, और ये जो एक गवर्नमेंट कैलेंडर इवेंट भी है। रिसेंटली आईएमओ का जो कैलेंडर इवेंट बना है, और ये मतलब ये शो जो ऐसा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको बहुत ये जो बेहतर इंसान बनाता है। नंबर वन इज़ आपको हाउ टू बी ए पंक्चुअल और हाउ टू बी ए डिसिप्लिन। आपको मतलब सब डिसिप्लिन डांसर से पहले आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश में होता है ये जो अरुणाचल सुपर डांसर। तो यहाँ में बहुत कुछ इनिशिएटिव आपको दिया जाता है, लाइक इनिशिएटिव लाइक आपको कुछ ऑर्गेनाइज हम लोग को करवाया जाता है, लाइक क्लीनिंग ड्राइव हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, तो बहुत कुछ ये सब हम लोग का टीम जो है करता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है ये अरुणाचल सुपर डांसर। और डांसर्स के लिए बोलने से ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हम लोग को दे रहे हैं। जितना भी हमें अरुणाचल बर्डिंग डांसर जो टैलेंट हिडन टैलेंट होता है वो लोग को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ये प्लेटफॉर्म वो लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका थ्रू से आप खुद को एक पहचान दे सकता है लोग करना सर में यस। तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो स्पेशली हम लोग का जो चेयरमैन है संजना बियो मैम, और वहाँ का जो उसका जितना भी टीम है, ये चीज़ को लेके यूथ जो हम लोग का जो डांसर्स अरुणाचल का जितना भी डांसर्स को लेके बहुत कंसर्न है ना, उनका टैलेंट को लेके बहुत कंसर्न है। तो ये शो वो लोग जो ये शो को दे रहे हैं बहुत अच्छा मोटिव का साथ दे रहा है, और हर सीज़न में अलग अलग टीम का साथ ये जो आता है। तो इस बार हम लोग का टीम था थिंक लोकल गो ग्लोबल, यस ये टीम था। तो इसमें भी हम लोग का कल्चर को प्रिजर्वेशन और कल्चर को लेके बहुत कंसर्न रहा है इस बार का में। और हर समय हम लोग का हर सीज़न में हम लोग का होता है
ये वॉरियर राउंड्स ना, वॉरियर राउंड्स बोल के एक राउंड होता है, लाइक वो कभी सेमी फिनाले में कभी क्वार्टर फिनाले में करा देता है। तो वहाँ में ऐसे होते हैं, हम लोग का जो कल्चर जो जितना कल्चर जो प्रीवियस जो फाइटर्स था, वॉरियर लोग था ना, वो लोग का बारे में भी हम लोग को कुछ कुछ वो लोग का डांस का तौर पे हमको दिखाना है जाता है। तो ये जो शो जो है नॉट ओनली डांसिंग्स ना, नॉट ओनली डांसिंग को तो फोकस मेन प्रायोरिटी रखा है, बट देन अदर देन डांस यहाँ पे बहुत कुछ आपको यहाँ पे आपको देता है बहुत कुछ ना, राइट। Not only dancing, not only dancing. बहुत कुछ में ना, Yes. in all the क्या बोलेगा perspective और Yes. जो प्लेटफॉर्म होता है हर चीज़ को वो लोग जो है मतलब ये ध्यान में रखे हर करते हैं ना। क्राइटेरिया Yes. लाइक Right, इमोशनली, yes. मेंटली, इंटेलेक्चुअली सब वे में पर्सनली एवरी राउंड ना। Yes. तो एक डांसर्स का साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही वो इंसान ऐसे ला इंसान को ही मतलब जो ऐसा नहीं है उसे ऐसे बनाता है ये शो में ना। With this, I am your host Dion Dakpi signing off from the Taishan Talk Show. The Taishan Talk Show will be aired every Saturday at 8 a.m. With this, thank you everyone.